Good morning, students. Yesterday, in yesterday class, we had talked about John Donne as a poet, his life, his works, and all that. But in today's class, we are going to read the poem, and the name of the poem is Sweetest Love I Do Not Go. Let us start the poem today. Sweetest love I do not go for weariness of thee. Here, as I had told you people in my last class, that it is a metaphysical point. And meta means beyond and physical means physical level. It means whatever the poet is going to talk, that is metaphysical. But here, first of all, we have to learn that on physical level, what the poet says. Sweetest love I do not go for weariness of thee. The poet is talking to who his beloved and addresses her as sweetest love. He uses adjective of superlative degree. Sweetest, sweet, sweetest, sweetest. And love, that is his beloved. I do not go. He says to his beloved that I am not going. He says to his beloved that he is not going. Sweetest love, I do not go. वह एड्रेस करता है, संबोधित करता है अपनी प्रेमिका को और कहता है उससे स्वीटेस्ट लव कह के संबोधित करता है और कहता है मैं जा नहीं रहा, आई डू नॉट गो. और फिर क्या कहता है, मैं जा तो रहा हूं लेकिन ये नहीं समझना कि आई एम गोइंग फॉर weariness of thee. Thee here is Old English. Thee means you. Weariness, that is tiredness. यानी स्वीटेस्ट लव संबोधित करते हुए अपनी प्रेमिका को कहता है, मेरी सबसे अच्छी, सबसे प्यारी प्रेमिका, मैं जा नहीं रहा, और अगर जा रहा हूं तो ये नहीं समझना कि मैं तुमसे थक चुका हूं. समझ रहे हैं ना. थर्ड लाइन है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो a fitter love for me. आगे कहते हैं कवि कि ये भी नहीं समझना, what nor in the hope the world can show a fitter love for me, कि मुझे कोई और भी तुमसे अच्छी मिल गई है. ऐसा बिल्कुल मत समझना. मैं जा रहा हूं जरूर, लेकिन ये नहीं समझना कि मैं तुमसे थक चुका हूं. मैं जा रहा हूं जरूर, लेकिन ये नहीं समझना कि मुझे तुमसे अच्छी मिल गई है कोई. But since that I must die at last, it's best to use self-interest. और उसके बाद, after that, the poet becomes philosophical. And he says that, what? But since that I must die at last, it is best to use my self-interest. And what? That in a philosophical tone, he says that everyone has to die one day. No one is to live forever. इस दुनिया में जो भी आया है, सबों की मृत्यु निश्चित है. कोई इसे रोक नहीं सकता. और ये जो छोटी सी जिंदगी होती है, इसमें क्या है, टू यूज माई सेल्फ इंटरेस्ट, कि वी शुड रिजॉयस आवरसेल्व्स इन दिस लाइफ.
इस छोटी सी जिंदगी को हंस लो, बोल लो, बिता लो अच्छे से, और जब समय आए टाटा बाय बाय करो और चल दो, है ना। और क्या आगे कहते हैं, दस बाय फेन डेथ टू डाई। और इस डेथ को ही इज टॉकिंग अबाउट दिस डेथ एंड ही कॉल्स इट फेन्ड डेथ. Faint means what? Faint means it means it is nothing. ये झूठा है. आप लोग भी समझते होंगे, जानते होंगे इस चीज को, इस फिलॉसफी को पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने भी, कि ये शरीर जो होता है नश्वर होता है, आत्मा अमर होती है ना। जैसे जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उन कपड़ों को छोड़कर हम नए कपड़े खरीद लेते हैं, उसी तरह जब हमारा ये शरीर जर्जर हो जाता है तो ये जो आत्मा होती है इस शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है ना। ये फिलॉसफी है, एंड दैट्स व्हाई द पोएट कॉल्स दिस डेथ एज फेंट डेथ. डेथ तो होता ही नहीं, आत्मा तो मरती ही नहीं, वो अमर होती है. तो पहले हाफ में, पहले पैराग्राफ में आप कह सकते हो, द पोएट talks up to his beloved and he says that I'm going. It's no doubt I'm going, but actually I'm not going. And I'm going. Don't think that I have become tired of you. No. And this also you don't have to think that I have got something better than you. No. I'm going because this is the way of the world. Everyone has to go one day. Everyone has to die. That's why I'm going. And what? This life is very short. We should rejoice in this life. And he calls this death as faint death because it is not actually death. It is just change, transfer of a soul from one body to another. समझ रहे हैं ना? आगे आइए. Yesterday night, the sun went hence and yet is here today. पिछले क्लास में जॉर्डन के बारे में पढ़ने के क्रम में मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए भूगोल और विज्ञान का सहारा लेते हैं, है ना। आइए इस पंक्ति में हम देखेंगे कि कवि ने अपनी बातों को रखने के लिए भूगोल का सहारा लिया है. क्या कहते हैं वो? Yesterday night the sun went hence and yet is here today. The poet compares his journey with that of the sun. कवि अपनी यात्रा की तुलना करते हैं सूरज की यात्रा से. As the sun goes every evening with a promise that he will come tomorrow, and he comes. In the same way, he says that I'm also going. I'm also going. But I'm going with the promise that I'll definitely return. क्या कहते हैं वो? Yesterday night, the sun went hence. पिछली रात सूरज डूबा, है ना। और आज फिर ये यहां है. He has no desire, nor sense, nor half so short away. Then fear not me, but hence
that I shall make a speedier journey since I take more wings and spurs than he. आगे कहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वो अपनी यात्रा की तुलना करते हैं सूरज की यात्रा से। और जैसे सूरज हर शाम डूबता है इस वादे के साथ कि वह कल सुबह वापस आएगा और वो अपना वादा पूरा करता है, ठीक कुछ इसी तरह कवि कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि मैं भी जा रहा हूँ और इस वादे के साथ जा रहा हूँ कि मैं भी वापस आऊँगा। ठीक है ना। आगे इस स्टैंजा में कवि अपने यात्रा की गति के बारे में बात करते हैं और अपनी यात्रा की गति की तुलना करते हैं सूरज की यात्रा की गति से। कवि कहते हैं कि मेरी भी यात्रा है और सूरज की भी यात्रा होती है, लेकिन मेरी यात्रा की जो गति है, द स्पीड ऑफ माई जर्नी is faster in comparison to the speed of sun's journey। है ना। कवि कहते हैं कि मेरे यात्रा की जो गति है वो सूरज की यात्रा की गति से ज़्यादा है। और क्यों है सूरज की यात्रा की गति से ज़्यादा, वो इसका एक कारण भी बताते हैं। रीज़न, ही ऑल्सो शोज द रीज़न। क्या रीज़न होता है? He says, वो कहते हैं कि यस, मेरे यात्रा की जो गति है वो सूरज की यात्रा की गति से ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि मेरे पास तुम्हारे रूप में एक कारण है। I love you very much. I cannot live without you. And that's why I'm going with a promise that I will definitely return. And I will return very soon. But the sun doesn't have such type of reason. सूरज के पास ऐसा कोई कारण नहीं है। मेरे पास कारण है तुम्हारे रूप में। मैं तुमसे ज़्यादा देर अलग नहीं रह सकता, मैं जल्दी वापस आऊँगा। लेकिन सूरज के पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से मेरे यात्रा की जो गति है वो सूरज की यात्रा की गति से ज़्यादा तेज है। उम्मीद करूं कि ये दो स्टैंजा समझ में आया। फिर से एक बार उसको हम लोग दोहरा लेते हैं। In the very first stanza, the poet says, the poet addresses to his beloved, and he addresses his beloved as sweetest love. He uses adjective of superlative degree, sweetest love. And then he says, sweetest love, I do not go. I'm not going. मैं जा नहीं रहा। Sweetest love, मैं जा नहीं रहा। और जा भी रहा हूं तो ये मत समझना कि मैं तुमसे थक चुका हूं। मैं जा रहा हूं जरूर, लेकिन एक्चुअली मैं जा नहीं रहा। और जा भी रहा हूं अगर, तो ये नहीं समझना कि मैं तुमसे थक चुका हूं या तुमसे कोई बेहतर मुझे मिल गई है। ऐसा दिमाग में कभी मत रखना, है ना। तो मैं जा रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये दुनिया की रीत है। दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। एवरीवन गोज फ्रॉम हियर, नोबडी लिव्स फॉरएवर। तो ये दुनिया की रीत है, इसीलिए मैं जा रहा हूं। ठीक है।
और फिर कहते हैं कवि कि ये दुनिया बहुत ही छोटी है, इस दुनिया में रिजॉइस करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही छोटी है, जीवन बहुत ही छोटा है। और क्या कहते हैं वो लास्ट में इस स्टैंजा में कि वो इस डेथ को कहते हैं इट इज़ ए फेंट डेथ। एक्चुअली ये डेथ है ही नहीं, है ना, ये डेथ है ही नहीं, ये तो बस आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का की प्रक्रिया है। तो जब ये डेथ है ही नहीं तो हम इस पर शोक करें क्यों, खुशी क्यों नहीं मनाया, है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ के बात होगी। दूसरे स्टैंजा में कवि अपनी यात्रा की तुलना करते हैं किससे, अपनी यात्रा की तुलना करते हैं सूरज से। जैसे सूरज हर शाम डूबता है इस वादे के साथ कि कल सुबह वापस आएगा और अपना वादा वो पूरा करता है, ठीक उसी तरह कवि कहते हैं कि मैं भी जा रहा हूं, मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं। वादा क्या है कि मैं जा तो रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आने के लिए जा रहा, मेरा आना निश्चित है। He compares his journey with that of the sun. As sun sets every evening with the promise that he will return tomorrow, in the same way the poet says that I am also going with the promise that I will return very soon. In the second half of the second stanza, the poet gives a reason. What he says, that his speed of his journey is faster in comparison to that of the sun, and he also shows the reason for it. द्वितीय स्टैंजा के द्वितीय भाग में कवि कहते हैं कि ये बात सही है कि मेरे यात्रा की जो गति है वो सूरज की यात्रा की गति से ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है इसका वो एक कारण भी बताते हैं। क्या कहते हैं, it says that the sun has no one to inspire him because I have got inspiration in form of you. कवि कहते हैं कि मेरे यात्रा की जो गति है वो सूरज की यात्रा की गति से ज़्यादा तेज है, और इसका कारण वही वो बताते हैं। कारण क्या बताते हैं वो, कि वो कहते हैं कि मेरे यात्रा की गति सूरज की यात्रा की गति से ज़्यादा तेज है क्योंकि मेरे पास प्रेरणा स्वरूप तुम हो, जबकि सूरज के पास प्रेरणा स्वरूप कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं ना, सूरज के पास प्रेरणा स्वरूप कुछ नहीं होता। और जब प्रेरणा होती है तो क्या होता है, आप उस वस्तु से या उस व्यक्ति से आप ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते। यही कारण है कि कवि कहते हैं कि मेरे यात्रा की गति जो है वो सूरज की यात्रा की गति से ज़्यादा तेज है। इस तरह हम लोगों ने लास्ट क्लास में पोइट के बारे में पढ़ा था, है ना, सारी बातें। और आज हम लोगों ने 2 स्टैंजा पढ़ा है। आप ये जान लो कि पोइट्री में स्टैंजा होता है और प्रोज में पैराग्राफ्स होते हैं। कभी ऐसा मत कहना कि इस कविता का पैराग्राफ या उस कहानी का स्टैंजा, ऐसा नहीं। स्टैंजा पोइट्री में होता है जबकि प्रोज में पैराग्राफ्स होते हैं। तो इस तरह से 2 स्टैंजा हम लोगों ने ढंग से पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ ज़रूर दिमाग में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो अगले क्लास में आप बेहिचक पूछेंगे
इसके बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।